Okay, one is Pakistani sitting and 2 and 3 are friendly neighbors are sitting. Okay, and I'll tell you, go and conquer peak 1. By the time you'll reach peak 1, you'll forget it was peak 1. You'll go and conquer our 2 and 3 जो हमारे साथ में थे. How can you forget your own life? हाय एवरीवन, आई होप आपने जो मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया था अब्दुल का, जो 7 टाइम कॉन्फ्रेंस जिसने अटेंड करी थी, आपने देखा होगा. होपफुली वो काफी लोगों को पसंद आया और उन्होंने कमेंट्स भी करी. तो उस इंटरव्यू को डेफिनेटली देखना. इट विल रियली गाइड यू फॉर अ कमिंग एसएसबी इंटरव्यू. आने वाले 2 इंटरव्यूज के अंदर जो मैं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ, वन इज श्रद्ध एंड सेकंड इज मधुरम. ये दोनों ही फर्स्ट टाइम अपना एसएसबी देने जा रहे हैं. एक सीडीएस एंट्री है एंड वन इज दी एफएसबी एंट्री. और आपको पता लगेगा किस तरीके से ये सवालों में फंसते हैं या फिर कहां पर इमोशनल हो जाते हैं एंड इफ दे बकल डाउन अंडर प्रेशर. तो ये 2 इंटरव्यूज को देखिए. और पिछली बार की तरह ये बताना चाहूंगा कि आई एम नॉट फ्रॉम डीआईपीआर बट आई हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस. और काफी सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है जो आज की डेट में फौज के अंदर है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फॉर दैट मैटर इंडियन कोस्ट गार्ड. सो दीज इंटरव्यूज विल रियली हेल्प यू, क्योंकि इसमें मैं काफी डिटेल लेवल पे ग्रिलिंग करता हूँ, ताकि रियल एसएसबी में कई बार ग्रिलिंग आपकी कम हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है. मैं यहाँ पर ज्यादा इसलिए करता हूँ ताकि आपके जो भी वीक एरियाज हैं वो आपके सामने आ जाए और आप उन पर काम कर ले. तो ये हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो रियल एसएसबी में शायद ना पूछे जाए या फिर बहुत डिटेल में भी पूछे जा सकते हैं. माई एंटायर एंडेवर इज दैट it is done in detailed by me so that the candidate is prepared for the SSB. Hi Madhuram, how are you? I am fine, sir. So Madhuram, are you feeling nervous? Little bit, sir. Okay. Be relaxed. Yes, sir. So Madhuram, I've gone through your PIQ, I've also seen your SDT. I want to understand what does Madhuram means? What is your father and mother's name? What does that mean? Where have you stayed maximum and what are the 5 places to visit? When was the last time you visited with your friends? What are the particulars of your parents, people in family? What are they currently doing? How do you support them? And entire education background from 10 to current. Sir, I am Madhuram Dikshit and my name means Sweet. Sweet? Sweet, sir. Are you sweet? Yes, sir. Okay. Like what kind of sweet? Sir, just Sweet, sir. Okay. Yes, sir. And my father name is Asim Dikshit. It means limitless, sir. Okay, limitless. Yes, sir. My mother name is Suman Dikshit and it is a flower, sir. Suman is a flower. Synonym of flower, yes, sir. Okay. Go ahead. And sir, I am from Ajitmal, Oraiya. I did my schooling from my hometown, Ganasli Academy, Oraiya. My percentage was 80.75%. I did my... And Madhuram, I want you to give the answer in the order the questions I've asked. Okay, sir. Can you repeat the order, please? You want me to repeat all the questions? Yes, sir. Okay. I had asked you, like, what are your parents' name? What is your name? You already told your name. What does that mean? Where have you stayed maximum? What are the places you've visited? 5 places you visited, and with your friends, when was the last time you visited? What are the particular about your parents? What are their current occupation? And how do you support the family? And then your entire education background from 10 to current standard. I stayed in my hometown, maximum, Sarai Jitmal. And I visited 5 places. First, Wagah border. Okay. Wagah border. Second, Chopta, Tungnath. Madhuram, did you understand my question? I'm asking what the places you visited in the place you've stayed, Oriya. वहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं. I'm not asking about 5 places you visited as such. Okay, sir. आपकी ये जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर कहाँ पर आप विजिट करते हो? कौन सी 5 जगह हैं घूमने की? I'm asking about the place you come from. Okay, sir. First place is, sir, Bhare. It is a Shiva temple. Which temple? Shiva temple. Okay, Shiva temple. You've gone to this? Yes, sir. Bhare. Bhare. Why it is called Bhare? Sir, it is a village name, sir. अच्छा ठीक है. तो so Shiva's which form is available in this temple? Lord Shiva? Sir, idol, sir. Normal idol. Yes, sir. Okay. So then why is it famous if it's a normal idol? Like what? Because, sir, some king made it for her queen, sir. Which king? Sir, I don't know the name. How many years you been staying in this area? Sir. You were born here? Yes, sir. ठीक है. तो तुम कितने साल की हो गए हो? 24 साल 5 महीने के. Tell me the first place. This is a Shiva idol. You don't know why. क्यों बनाया है? ऐसे ही बना दिया था? No, sir. तो कुछ होगा ना? बताओ क्या होगा? तभी तुम पूछा 5 जगह गए होगे, कुछ तो पता होगा. Sir. बताओ. I don't know exact reason why it made it for her queen. But your teachers write that you were curious. You were never curious about your own आसपास की चीजों के बारे में. Because, sir, I don't remember now. अच्छा, earlier you remembered. Yes, sir. Okay. When was the last time you remembered this? Sir, when I went there. That was, sir, 3 years ago.
3 years ago. So anything which happens 3 years, 3 साल के बाद वो, जैसे for example, after 3 years you forget everything. No, but sir, it is a big story, so sir. Oh, it's a big story. Right now, I'm forgetting the name of king and. So I hope the other 4 places you would be knowing. Yes, sir. Okay. And sir, second is also Mangala Kali and Devkali. Mangala Kali, Devkali. Devkali. Devkali, yes, sir. Okay. It is also Shiva temple, and it is made by Harshvardhan. Who is Harshvardhan? Harshvardhan was a king in 5th century, sir. Okay. He made it for her sister, sir, Okay. for staying near Ganga river in Yamuna river bank. Okay. Yes, sir. And third one is Pachnad, sir, the river. 5th century AD you're talking about? BC? AD, sir. AD. Then? And fourth one is also temple, sir. We call it Madaiya, sir. It is also Shiva temple. And fifth one is Jalonwali Mata. So out of the 5 places you've told me 4 temples of Shiva. Yes, sir. You've told 5 or 4? 4 of Shiva, sir. ठीक No, है सर. So are you a Shiv Bhakt? sir, अब जब गए होगे तो हो गई कुछ तो. not only Shiva Bhakt, but yes, sir. Can you tell me 1 or 2 lines of Shiv Stotra? No, sir. No idea. Can you tell me some names of Lord Shiva except Shiv and Bholenath? Yes, sir. Sambhu, Abhishek, and we also call him Bhole, sir. Okay. आगे बढ़ो चलो फिर. So यहाँ पर तुम कब गए थे लास्ट? सब 2017 में. No, sir. So apart from your temples, 5 temples, there's nothing else. No, sir. So government has not done और कोई development कुछ और कुछ structures कुछ बनाया नहीं है. No, these sir. places? It is a very small district, sir. Okay. So the government is not focusing on this district. Sir, no, not in tourism sector. Who is the current SP and who is the current DM of the place? Abhishek Dikshit is the SP and DM, I am forgetting name, sir. Both are doing nothing. They are not developed and there is not place, sir, which can be मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह ही नहीं है डेवलप करने की. in tourism, sir. No, sir. मतलब लाइक काफी जगहों पे कुछ मॉल बनता है, कुछ बनता है, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है. Why is that? Because, sir, it is not It is not. very big district and not. कि क्या क्या कितनी जगह में फैला हुआ है? Sir, right now I don't remember. You don't know. Yes. 24 years you don't know about your own place. I am not remembering right now, sir. Okay. When will you remember? Next SSB interview? You will remember? Sir, I will. Okay, good. So when do you want your next SSB interview? If this would have been that right now, the current interview, when would you want that, you know, that the next SSB interview would there, that you will perform there and get selected? Sir, after 5 or 10 days. After 10 days. So in 10 days, you will work on everything and then you will get selected here. Yes, sir. Okay, there, okay. Okay, next. You remember the questions? You forgotten? Yes, sir. Tell me. And my father is a bank manager. He's retired last year. And my mother is a homemaker. And I have 2 elder sisters. Both are working. One is working in software, working as a software engineer, and second one is working as a teacher. Okay. What is the education? Father is my MSc in botany. My mother is a MA in Sanskrit, and my elder sister is a MEd, and my second elder sister is BTech in computer science. She has done computer science from where? Sir, GL University, Mathura. And she's working software engineer with which company? In Thales Private Limited in Noida. Okay, she's working in Noida. I want to understand, like, your mother is a MA Sanskrit. Why didn't she work? Like, it's a good degree. Sir, it was not very common in family to work woman that time. The family was not allowing her to work at that No, point. she was also not interested, sir. She was not interested. She told you this, that she was not interested? Or this is your own assumption? I think this is my own assumption, sir. Okay. So right now, like, you didn't put any effort ki mom, the family is more or less settled now, that she can start working or she can start something on her own. No, sir. Like, she has done MA in Sanskrit, which is not quite common. So she could have gone. You don't want to support her? You never spoken about this with her. What kind of relationship you share with your sisters? Sir, I share most of my things, and she also share most of things to me. And how do you help each other? sir, she tell me how to study, and I help in her. Like I taught her driving. I taught her driving, and I tell her normal basic things like normal norms Of driving? of driving or etc. Like what? Batao? Like if she asks me about where is Uttarakhand or where is
like basic information, sir. ये तो वो खुद गूगल से देख लेगी But यार. sir, she asked me for then like Your sister who is a BTech is asking where is Uttarakhand? yes, sir. But she is not interested in general. Knowledge. General knowledge. Yes, sir. So your sister who is a MEd and a teacher in a BTech, she is asking where is Uttarakhand? No, sir. BTech. अच्छा BTech. Yes, sir. She is working in Noida Yes, sir. and your district is far distance from Uttarakhand compared to her. दिल्ली से तो पास में ही है, तो वो पूछती है उत्तराखंड कहाँ पर है. Like Uttarakhand, any place Uttarakhand or how to go Kedarnath and like these things. तुम यही सब बात करते हो where is Uttarakhand and how to reach Uttarakhand. That's it. That is the bond you share. No, sir. Tell me, तुम मुझे ये बताओ to tell me 2-3 incidents how you have supported emotionally your sister. 3 incidents. I'll give you 30 seconds to think और आराम से बताओ. 3 with elder and 3 both are elder to you. So one the MEd one and the one the BTech one. So with elder one, once she accidented the car, so my father yelled at her. Your father? Yelled at her. Hmm. So I supported at that time. और दूसरी भी ठोक लो. No. How did you support her? Madhuram, your name means sweet, but you're not giving me sweet answers. It's like, Atal Bihari Vajpayee Saab speaking. He used to take pause, but you are paused. Please speak. You're not able to remember incidents? Yes, sir. Okay. Say, forget about elder sister. The MEd one, tell me about the BTech one. Okay, forget about your sister. Tell me how your relationship you have with your parents. Sir, we share nice bond. How? We You talk- share a debt bond or you share an emotional bond? We share everything, sir. You share a debt bond also. Sorry, sir. Tell me, okay, keeping this side, what kind of bond you share? They told me about their condition, or like what they are thinking, and I tell them about my situation. What is your situation? Which you tell to them? Like I am preparing for competitive exam. That they already know. Yes, sir. They support me in that you can do it and just be focused. How many exams you have given of CDS AFCAT? Sir, CDS, I have given CDS 3 attempts, sir. AFCAT. FCAT, so this was my second attempt, sir. Okay. Which one you've cleared? Sir, second one. AFCAT second. sir, yes. CDS you've not cleared. No, sir. So your exams giving, they're telling you to give exams and pass it. So this is the only emotional bond you have. You tell them that you give exams, they tell you that pass exams. This is the only bond. No, sir. We also go and visit some places together and Okay, you go with talk them. on family things, sir. Like what? Tell me 3 best things of your mother and why are those best things? Your mother, how is this possible? You don't know 3 good things about your mother? There are no good things in your mother? Sir, there is. Tell me. She take care of me, sir. Good. Thank you for telling us that she's taking care of you and entire family. Okay. And she teach me, sir, how to behave with How to? behave with people. Okay, she behave. She still teaches you how to behave with people? Sometimes, sir. You're still ill-mannered? No, sir. Then why is she teaching you? If- Tell me the last thing she taught you, like ये behavior में क्या change लाने को बोला उन्होंने तुम्हें? सबसे recently. Every day, sir. To talk every day. Talk every day to her, sir. To talk every day with her. Yes, sir. You don't talk to your mother. I talk to my mother, sir, but since last month, हाँ. I am not talking every day to her. नहीं, that is something because you were here for, you were completing your course. But what is the thing? I'm talking about your behavior. So you were telling me na, that she is telling me to improve my behavior. What is the problem with your behavior? She still is trying to teach you at almost 25 years. Not that very much in bad things in my behavior. She teach me little things to change. Like she taught me how to make chai. So if there is some When did you learn how to make chai? Last month? no, sir. Then? Sir, 10 to 15 years ago. 15 years ago you learned how to make chai and you're giving me example right now. I'm asking recent. Either you are dumb or you're not understanding my question. I am not remembering right now example, sir. That's why. Yeah, Madhuram, if you're not remembering anything, for example, you take in the forces. By the time I said you go to these peak, say for example, there's a peak 1, 2, 3. Okay, 1 is Pakistani sitting and 2 and 3 are friendly neighbors are sitting. Okay, and I'll tell you go and conquer peak 1. By the time you'll reach peak 1, you'll forget it was peak 1. You'll go and conquer our 2 and 3 जो हमारे साथ में थे.
How can you forget your own life? Am I asking GK questions to you? No, sir. Am I asking what is the range of S400, AK203 की range पूछ रहा हूँ? I'm just asking simple thing. Qualities of your mother, things which you spend with her. That's your own personal life. You don't need to Google this. Again, the same question. Chalo, if you don't know your mother, let's move to your father. What are the things which you don't like in your father? He eats sweets, sir. He is diabetic. And he eats sweets, sir. He eats sweets. So what have you done to control it? Sir, I go to regular checkup with him and give him medicines. Stop. See, my question is, स्वीट्स को कम करने के लिए क्या करा है? मेडिसिन तो स्वीट्स खा रहे हैं और तुम बोल रहे हो मेडिसिन खा लो, वो तो कोई इलाज नहीं होना. सो हाउ हैव यू बीन एबल टू कट डाउन ऑन द स्वीट्स? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. Yes, sir. I stop him to going in wedding parties, sir. You stopped him. I rusticate him, not stop him. Like I go with him You go with him when he go to wedding. and you don't allow him to eat sweets. Yes, sir. You eat, but you eat. No, sir. You also don't eat. Yes, sir. Okay. So sweets is something you go with on. So marriage के बगैर बाकी सारी जगह खा सकते हैं. No, I am giving only example, sir. Whenever we go outside, he used to eat sweets, sir. So I have to take care of this, sir. ओके. और चीजें बताओ, क्या क्या अच्छी चीजें उनके फादर में आपके जो आपको पसंद है? He is disciplined, sir. And Why is he disciplined? sir, he wake up every day at 4 a.m., sir, Okay. and do daily chores. And he is very dedicated to his work, sir. That's why. Okay. So he is disciplined. What all other things you like? What other qualities? Sir, his funny behavior, sir. That you definitely have got. Your answers are like that only. You are funny? Okay. So he is funny. Or He anything else? take care of us, sir. He takes care of himself. Us, sir. Okay. Of family. That's the same thing like your mother. Okay, so your father was a bank manager. Which bank he was? In Aryavart Bank, sir. Aryavrat. Aryavart, sir. It was Allahabad Bank earlier. And later Allahabad grew. It is a rural bank, sir. Okay. So he has he for his entire career he has been part of a bank. Yes, sir. Okay. So you've seen him working in the bank. Yes, sir. So my question is that a very simple question, since you've been part of a banking family, that so many people deposit money, like if all of us deposit money in the bank and suddenly one day, say for example, all of us we have deposited, we are 10,000, but suddenly we go in a bank and we all want to withdraw the money. If we all withdraw the money, the bank will be empty. How does this work? Sir, the deposit money is different, and sir, they provide the money to public. That is different. Okay. Like deposit money and providing money, both are different, sir. Providing money. If we go to debit money, then it will be different money come from regional office, sir. Like if bank has 10 lakh rupees, then they will provide you that money. If we all go and try debit. फॉर एग्जाम्पल इन Yes, बैंक sir. वी आर 10 पीपल, हम 10 का अकाउंट खोला, हम 10 ने सबने 100 रुपए डाले, टोटल कितने हो गए? 10 लोगों के. हाँ, अब हम गए 1000 रुपए निकाले, हमने 1000 रुपए निकाले तो बैंक तो खाली हो जाएगा, वो किसी को लोन वगैरह Sir, both money are separate, sir. हाँ, which that's what I'm asking. So which money you're talking about and how does bank get that money? उसके पास तो वही थे ना, वो 1000 रुपए गए. No, sir. They deposit money in different account and they provide money to public. That is in different account. हाँ, so Like- the provide money, where does that come from? Sir, regional bank, sir. A Regional different office, bank sir. gives money to them. Yes, sir. Regional office, sir. Headquarter of that bank, sir. आई एम टॉकिंग अ सिंपल, वो तो एक ही बैंक तो मुझे बता रहे हो, उसके रीजनल हेडक्वार्टर हो गए, पैसा कहाँ से आ रहा है देने का, वो पूछ रहा हूँ मैं. Sir, daily, sir, new bank come and provide money to bank, sir. क्या एक नया बैंक पैदा हो जाता है, वो उसको पैसा दे देता है? No, sir. देन तुम ही मेन बैंक हो, तुम में 100 लोगों का अकाउंट है, वो 100 लोगों के अकाउंट में पैसा निकाल लिया, एक दिन में निकालना चाह रहा है, वो निकालेगा तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पूछ रहा हूँ. जो तुम बोलो ना एक अलग फंड भी होता है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो किसी और बैंक से आता है, आरबीआई से आता है, गवर्नमेंट से आता है, सीबी से आता है, किससे आता है, वो पूछ रहा हूँ. यू हाँ, RBI, sir. आरबीआई अलग से पैसा देती है बैंक को करने के लिए. RBI bank has also its fund, sir. Before it, they cannot start its bank. आरबीआई If bank has not 5,000 crore rupees in deposit, they can't start, sir, commercial bank. They cannot be a commercial bank, sir. So if I need to start a bank, I need to have a You have to have a fund personal, of- मतलब Yes, sir. 5,000 crores. Yes, sir. Okay. 5,000 crore is needed to start a bank. To become a commercial bank, sir. Okay. ठीक है, चलो
So you come from a family which has a MSc, which has a MA, which has a MAd, sister is a BTech, and still you got 53% in 12th. Yes, sir. How did you achieve this? And you failed in one of the class in 11th and 12th. No, sir. So you finished your 10th in I 2000. repeated my 11th twice, sir. Okay, that's all. Why did you repeat? Compartment? No, sir. I went to Kota, sir. Oh, your Kota. Yes, sir. So कोटा में क्या करा? वो क्या है वहां पर वो 7 जगह घूमने की? 7 wonders, sir. 7 wonders. You became the 8th wonder. No, sir. चलो बताओ क्या करा भैया, 3 साल निकाले तुमने। कोटा में क्या करा पहले बताओ। एग्जाम तो निकला नहीं तुम्हारा। No, sir. I cleared state exam, sir. State university exam, sir. स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम। डिड यू ज्वाइन? Yes, sir. अच्छा, ये स्कूलिंग भी वहीं से करी कोटा से? Yes, sir. I first went to there. हाँ। I started my 11th there. They started to call us regularly. Then in coaching, in doing coaching, sir, it was difficult for me to manage both things. Then So this you joined the time pass school? yes, sir. Not time pass school, but sir, where not very much high attendance regulations. हाँ are वही policy. time Yes, pass sir. school. You go only for giving that practical books. You pay them na? Coaching classes pay them. Yes. Okay. So 11th and 12th तो there were no activities. ठीक है, वो तो तुम for how many years you were in Kota? Sir, 3 years, sir. 3 years you were in Kota. Yes, sir. Oh, great. You made a girlfriend or girlfriends in Kota? Yes, sir. Girlfriend or girlfriends? Girlfriend, sir. How many girlfriends you made? Sir, only one. Oh, चलो. You have lot of content for us to discuss. So क्या करा तुमने कोटा के अंदर? I studied and I also, sir, traveled, sir. Traveled? Yes. Where did you travel? Tell me. So that time Jaipur, sir. Mehndipur Balaji, sir. And Vaishno Devi, sir. Yes, sir. All the 3 places. So your father was paying you to travel. Not for. I was saving, sir, money. I was saving. Whatever money, Yes, उसी में से बचा के ट्रिप पे निकल जाते थे। Yes, sir. कितने लड़के निकलते थे? 4 or 5, sir. 4 or 5. किसी का आईआईटी निकला? अरे इतना सोचना। No, sir. Okay, and what happened with your girlfriend? Which college she got? She was MBBS student, sir. अच्छा, she got NEET college. Yes, sir. Which college she got? Sir, we broke up, sir. अरे तो कॉलेज तो पता होगा। No, sir. We are not in contact. No contact. Yes, sir. Okay. Why no contact? Why did you broke up? Sir, it was a mutual understanding. What mutual understanding? She dumped you. No, sir. Then Sir, she didn't find you sweet. no, sir. She Sir, find. बताओ. Sir, we were not focusing on our studies. That. This you realized after how many years? Sir, 4 months, sir. 4 months. Yes, sir. Okay. So don't you think you for 3 years you went schooling तो तुमने करी नहीं, तुम्हारे marks भी कम आ गए and कोई top college भी नहीं मिला? That is the only reason, sir. What? Kota? Yes, sir. The pattern was different there, and in writing 12th exam, that was different pattern, sir. You think it was a great decision to go to Kota? Yes, sir. Why? Because I learned so many things there, sir. Like How to deal public and how to convince people and more. you're not able to convince me with single answer. Sir, generally, sir. मतलब वो convince how people. you can talk to sabji wala, How to talk sabji wala or hotel wala. Yes, sir. how to talk to girls. Yes, sir. ठीक है, but this you could have done in graduation, my dear friend, or later. But I didn't You- know that time, sir. So why are you saying still it was a good thing that you went to Because Kota? I learned also many things, sir. But you sacrificed your entire education when you were doing academics. Wasn't the academics focus for you, or how to talk to sabji wala was No, focus sir, for I you? studied also there. No, it doesn't see you studied here. But I cleared, sir, state exam and I got top 5 college in state, sir. State, and you did BTech in? Electronics and communication, sir. Okay, चलो तो यहाँ पे भी तुम्हारे मार्क्स गिर गए, 73% आए. Why? Sir, but in all semester, my exam was increasing every semester, sir. So you did electronics and communication. Yes, sir. So where were you placed after that? Sir, nowhere, sir. Eh? You said you were in top college. What happened for placement? Sir, I choose to not doing job. Why? You completed your graduation in 2021 and you're 24 years, 5 months. You're jobless. Why? Because, sir, I was finding Because my your interest. family is earning enough. They can take care of you. No, sir. Then, Sir, I was just exploring my interest, sir. okay. How many years have been exploring? So I am preparing now, and sir, I cleared. it in Yeah, exam this but time. if you were exploring, why didn't you work? A lot of people work and they explore. You're just passing time. First, you were passing 3 years in Kota with going to trips on Jaipur, Mehndipur, and Vaishno Devi, and then you were exploring this. Why are you not focused, Madhuram? What is the problem with you? Why are you not focused?
Earlier it was quota, then it was trips, then it was girlfriend, then engineering करी, engineering में भी अच्छा कॉलेज मिल गया, वहां पर भी कुछ नहीं करा, प्लेसमेंट में नहीं बैठे. Why are you not focused? What is the reason that I don't see a focus in you? Is it because of friends, family, which one, or it's with the problem is with you? It is only in me, sir, Why? because I like too much traveling, sir. Well, that is okay. So you are not focused because you're traveling. Traveling is the only thing I you am can focused, agree. sir. I am trying to focus No, no, every you are day. not focused. There is this entire PIQ tells me there is no focus. If you would have been focused, you would not be going in trips in quota. Your focus would have been clearing the examination. You would have taken a placement, probably worked. I went there to trips, sir, when there was a holiday. People do DPP sheets in holidays in quota. Yes, sir. They don't go on trips. You were using your father's money to go on trips. That was not even the money earned by you. Did you earn that money? No. No, sir. Were you selling Maggies in quota? No, sir. Then पापा के पैसे ही तो उड़ा रहे थे. Yes, sir. तो फिर पापा ने पैसे दिए थे एग्जाम क्लियर करने के लिए. I was studying, and I was also doing Studying, DPP, if you would have been studying, you would have been somewhere else, and you would have not repeated 11th class. Why did you repeat 11th class? because sir, attendance regulations was very Attendance 11th class के Yeah. दोनों क्लास के मार्क्स बताओ मुझे. 11th 1, 11th 2 बताओ. tough. Sir, 11th one was 79%, but 11th two is not, sir. Good. Tell me why are you not focused? You're not focused. You're passing time. 24 साल 5 महीने हो गए, एक दो अटेम्प्ट बचे हैं तुम्हारे पास. बताओ why are you not focused? If CDS does not happen, what will you do? I will prefer to see UPC CAPF or UPSC CAPF. or CGL How will you prepare for CAPF? by reading general awareness and How many writing it. CAPF exams you've given? Sir, only one. Do you think you're eligible for next year attempt? Yes, sir. One I can give it on one time. How? What's the age eligibility of CAPF? Sir, 25 year. तुम कब हो रहे हो? तुम तो 24 years 5 months के already हो गए Yes, हो. sir. But I will be 25 in August, sir. हाँ. But they ask for 1 August. They calculate their age on 1 August, sir. I can give it And what's your date of birth? 23 August, sir. 20 नहीं क्या है 23rd August. Yes, sir. 23rd August. हाँ तो बताओ चलो CAPF के अंदर कैसे करोगे तैयारी? क्यों CAPF लास्ट वाला क्लियर हो गया था? No, sir. तो how will you clear this time? Like I cleared FCAT. I will. CDS क्लियर हुआ तुम्हारा? No, sir. इस बार CAPF क्लियर कर लोगे? Yes, sir. ठीक है मुझे बताना 2022 में क्या ऐसे के क्वेश्चंस आए थे CAPF के पेपर में? What was the topic of essays? See, I keep on asking because I know तुमको 2023 का भी याद नहीं होगा. Tell me 2023 essays. I have not given in 2022. 2023 बता दो. So this is for your backup option. Paper 2 is of how many marks? How much marks? Sir, 200, sir. Paper 1. Sir, कितने क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में? around 100, sir. Good, very good. 100, 120, 125. Sir, 100. CDS की GS में कितने क्वेश्चंस होते हैं? Sir, 120. Good. So you are now cracking CAPF, which you have not cracked CDS. ठीक है, तो ये तुम्हारा बैकअप ऑप्शन CAPF AC है CAPF or CGL. और CGL. Yes, sir. Okay. You've written you're a goal-oriented person. कौन सा goal oriented हो तुम बताओ? Why do your parents think you're goal-oriented? Because, sir, whenever I started for preparing one thing, I did my best in that, sir. Okay, so tomorrow I start thinking that I'll go to Mount Everest, even if I don't go to Mount Everest, but I've decided to go to Mount Everest. I'm goal-oriented. So I will gain knowledge about it. I will also gain knowledge about Mount Everest from GK today. Yes, sir. So I'm goal-oriented. No, sir. If you will do work, and I'll do work. I'll do work. I'll go to gym. I'll come and I'll keep reading about Mount Everest. I'm goal-oriented. so if you will go, then we will run it. So if I go on helicopter to the base and come back, I'm goal-oriented of Mount Everest. No, sir. Then how? Because, sir, Once I achieve it, then you, if I go actually complete the peak, yes, sir. then I become goal-oriented. Yes, So how are you goal-oriented? CDS, engineering, lot of things which are missing here. Why are you saying you're goal-oriented? You're goal-oriented or you'll complete the goal also? So I am goal oriented and try to give my best to achieve goals, sir. Okay. You've also written you're process-oriented. What is the difference? You're writing big words. बताओ क्या difference है? Process oriented, sir. If I decided to do any work, then I will do it. I try to do it and I will give my best in it. What are your hobbies and interests? Sir, cycling, driving, sir, hiking, or sir, mimicry is also my interest. What is the spelling of mimicry? MIMCRY. Sure.
MIMCRY. Yes, sir. What is the spelling of mimic? MIMIC. What is the spelling of mimicry? MIMICRY. What did you tell me earlier? MIMICRY. Good. ठीक है, कहाँ कहाँ पर हाइकिंग करी है तुमने? सर टुंगना चंद्रशिला एंड सर त्रिंड इन धर्मशाला एंड केदारनाथ ट्रैक सर एंड What did you learn from these hikes? What did you learn from these hikes? Why do you want to join Indian Air Force? Kadrum, since you're not able to give me a lot of answers to the questions which I'm asking, it was lovely talking to you. Thank you very much, and Jai Hind. थैंक्स. Please sit. बैठ जाओ. काउंटर क्वेश्चन ना कर पाओ उसके फिर जैसे मुझे याद आ रहा था कि खाना अच्छा बनाती मम्मा तो मुझे फिर ये लगा कहीं ऐसा ना हो आप काउंटर करो अच्छा खाना ही बनाती हैं सर तो वो भी मैं ही सोच रहा हूँ आपके क्वेश्चन फ्री हो नहीं तो पर अब तुम काउंटर क्वेश्चन का आंसर करने तुम काउंटर सोचोगे इसके बेसिस पे मेन आंसर करना बंद कर दोगे क्या? नहीं, बंद थोड़ी करोगे तुम. नहीं वही तो वही अटक जाते चल वो वहां से देख लेगा, तू इसको इधर कर. और बताओ, और क्या देखा? मेन यही होता है कि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं ना उनके भी आंसर देने के बाद वो उस क्वेश्चन के लिए भी रेडी होना पड़ता है तो वो सोचने में टाइम लग जाता है. अभी तो तुम फ्रंट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे थे मुझे, कोटा में तो तुम फंसी गए. हाँ तभी तो वही तो सोच रहे थे नहीं जहाँ नहीं सोचा वहां फंस गए. कोटा के अंदर ट्रिप कर रहा था गर्लफ्रेंड बनाने से. ये तुम सोच के थोड़ी आओगे कि ये आए थे कि बताऊंगा. नहीं ऐसा पर मैं कंफर्टेबल भी था इसलिए. नहीं कंफर्टेबल तो ठीक थे बट अब तुम इसमें फंस गए ना. 53%, 3 साल, ये फोकस नहीं. उसके बाद तुम टेम्पल्स मुझे बता रहे हो, टेम्पल्स के अंदर भी वही. मैं पूछ रहा हूँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, तुम बोल रहे हो कुछ बन नहीं सकता. ऐसा थोड़ी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बन सकता. You don't have to talk ill about your district. You have to talk good about your district. सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये घूमने की जगह है, ये घूमने की जगह है सर, और डेवलपमेंट हो सकती है. तुम ही पेसिमिस्ट हो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में. अगर तुम ही पेसिमिस्ट हो तो बाकी सारे तो हो ही जाएंगे ना. यू हैव टू टेल इन अ बेटर वे. सीधे होके बैठ जाओ. ओके. और यार यू वर ऑल फोकस, मतलब क्या बताऊं. मिमिक्री स्पेलिंग क्या होती है? देखो इसने क्या लिखी हुई है, मिमक्राई. अरे क्योंकि पहले मैंने मिमिक पूछा ना. हाँ मिमिक तब गलत बता रहा था, फिर मैंने मिमिक पूछा, मैंने कहा अब तो सही बता दे. तो मिमिक्री तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम उसकी स्पेलिंग गलत लिख रहे हो PIQ के अंदर. यू आर गॉन. यहीं पे खत्म हो जाएगा बंदा. और उसके बाद स्कूल. स्कूल जैसे तुमने ये बोला कि सर मैं तो स्कूल, मैंने बोला इट वाज अ टाइम पास स्कूल. तुमने बोल दिया यस सर. डू यू से दिस इट वाज अ टाइम पास स्कूल? That means in your schooling there was no personality development. And what was he telling me? I learned public skills. सब्जी वाले से कैसे बात करनी है. अगर तुम यही आंसर दे रहे हो तो इस आंसर की बेहतर फ्रेमिंग होनी चाहिए. सर आई गॉट टू नो, मैंने पब्लिक से कैसे बात करनी को सीखने को मिला, मुझे हॉस्टल में कहना लिखने को सीखने को मिला. तुम्हें ये नहीं बोला कि स्कूल ही खत्म हो गया जी मेरा. सर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बट आई वाज मैनेजिंग माय IIT स्टडी विद दिस. अभी तुम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो सर एडमिशन करा दिया था, घूम रहे थे फिर रहे थे वहां पर. पढ़ाई की बात करो ना. नॉट एवरीवन इज गोइंग टू क्रैक IIT. और उसके बाद तुम जॉब भी नहीं कर रहे हो. मान लिया जाए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अभी तुमने बीटेक कंप्लीट कर लिया, तुम कोर्सेरा वगैरह से कुछ कोर्सेज करो ताकि दिखे कुछ प्रोफेशनल पढ़ाई चल रही है. जैसे श्रद्धा की वो प्रोफेशनल पढ़ाई चल रही थी ना, तुम्हारी कुछ है ही नहीं. तुमने खत्म करी थी 2021 में. हाँ 3 साल हो गए हैं, कुछ भी तुमने पढ़ाई वगैरह नहीं करी है उसको लेकर, तो वो करना स्टार्ट करो. आंसर फ्रेमिंग बहुत पुअर है मधुरम, अभी बहुत ज्यादा. ठीक है, तुमने ये प्रोसेस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, प्लीज डोंट यूज दीज वर्ड्स. ये बहुत हेवी बुक्स में ये वर्ड्स यूज करें. इनको अगर तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, यू आर डेड इन द इंटरव्यू. पुअर फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है SDT के अंदर. इंग्लिश नीड्स टू इंप्रूव. मोर थॉट नीड्स टू बी गिवन. SDT में पहले ही लिख के रखा था. SDT बहुत पुअर है ये अभी. ठीक है, मतलब अंग्रेजी तो चलो विद टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी. तुम्हें एनिमल शेल्टर भी करना है, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स भी करना है, तुम्हें ट्रैवल भी करना है तुम्हें. और तुमने अब देखो ये कितनी बड़ी चीज है. एम इन लाइफ ऑल्सो माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू ट्रैवल. और तुमने मुझे क्या बोला कि सर, मैंने बोला वाई आर यू नॉट फोकस्ड, बिकॉज यू सेड आई वांट टू ट्रैवल. मेरी ट्रैवलिंग की वजह से मेरा फोकस नहीं है. अब एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. तुम्हारा फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि तुमको ट्रैवल करना है, और तुम लिख रहे हो मेरी लॉन्ग टर्म, मेरा एम गोल मेरा ट्रैवल करना ही है. दैट मीन्स तुम लॉन्ग टर्म तुम अनफोकस्ड ही रहोगे. खत्म इंटरव्यू. गॉट इट? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू ट्रैवल. इसने वो क्या बोला था, मेरा फोकस क्यों नहीं है, बिकॉज आई ट्रैवल. कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. बाकी क्वेश्चन इसने मुझसे पूरे क्वेश्चन रिपीट करवाए. कभी आयो को बोलोगे तुम रिपीट करने के लिए क्वेश्चन? तुम ज्यादा से ज्यादा बोलोगे सर कैन यू जस्ट टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोशिश करनी है याद करने की.
अच्छी बात है वो बता दे। आर्मी बोर्डो तो कई बार गाली भी सुना देता है, वो करते हैं रिपीट मत। लड़कों को तो सुनाते हैं। हाँ एंड इसने लिखा था ट्रैवलिंग कॉन्टिनेंट, मैंने कॉन्टिनेंट कटवाया है उससे। उसने आपने कॉन्टिनेंट पढ़ लिया होगा तो फिर बताते हैं आप उससे। अब तुम कॉन्टिनेंट लिखते हो उससे कितने क्वेश्चन निकलते, पूछता कितने टाइप के कॉन्टिनेंट्स है, ओशियनिया क्या है ये। देखो काउंटर क्वेश्चन से डरना नहीं है, हर काउंटर क्वेश्चन का तो आंसर भी नहीं होने वाला, बट काउंटर क्वेश्चन के डर में हम मेन क्वेश्चन का आंसर थोड़ी नहीं करना बंद कर देंगे। बंद करोगे तुम मेन क्वेश्चन का आंसर करना। अब ये काउंटर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था और उस चक्कर में मेन क्वेश्चन का इसने ये जवाब नहीं दिया, व्हाई आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। इस वाले इंटरव्यू को कल से कंपेयर करो। श्रद्धा जवाब तो दे रही थी ना, सही गलत इज अ डिफरेंट थिंग। ये तो चुप ही बैठ रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा। अगर जवाब नहीं दोगे तो सिलेक्शन हो पाएगा। अब श्रद्धा ने जवाब दिए, वो सही गलत थे। जब उसने गलत दिए तब हमने बताया ना इसको इस तरीके से बोलना है। ये तो बोल ही नहीं रहा है मेरे को आंसर। अगर आंसर बोलेगा नहीं तो कितनी देर चलेगा इंटरव्यू, 10 मिनट बोलेगा, ठीक है चाहिए टाटा बाय बाय। तनख्वाह मिल रही है क्या इंटरव्यू को सिलेक्ट करने की इसको अलग से, ठीक है। विल यू स्पेंड टाइम विद मधुरम, कि अगर मधुरम आंसर नहीं देगा तो। तुम एक बात बताओ, तुम इंटरव्यू ऑफिसर हो और तुम इंटरव्यू ले रहे हो, तुम ब्रिगेडियर बन गए हो, वो बंदा 15 मिनट से कुछ बोल नहीं रहा, तुम 1 घंटा खींच पाओगे? वो 5 मिनट भगा देना यार, ये कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलेगा अगला कैंडिडेट देखता हूं। उसका काम क्या है, अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। आंसर्स ही नहीं दे रहे थे तुम मुझे। मैंने पूछा हाइकिंग के ट्रिप से क्या सीखा, नॉर्मली मुझे मधुरम 10 चीजें बता देता, यही नहीं बता रहा। कितनी सारी चीजें हाइकिंग के ट्रिप से सीखने के लिए, कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी, क्या करा होता, क्या वही आंसर क्यों नहीं दे रहे थे तुम मुझे? प्रेशर फील हो रहा था थोड़ा। तो हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा क्या, पूरा ही हो रहा था प्रेशर तो। ठीक है। तो ये जो ब्लैंकनेस थी, श्रद्धा यू आल्सो फेल्ट इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब एकदम से आंसर नहीं आता है तुमको ये, तो व्हाट वर यू फेसिंग, यू वर नॉट, सॉरी, यू वर नॉट गेटिंग द आंसर बट यू वर गेटिंग द आंसर, बट यू वर कंफ्यूज्ड कि इसे बोलूं कि नहीं बोलूं। यही सर, कंफ्यूज हो रहा था कि बोलना है कि नहीं बोलना है उसे। तो ये तो जब तक तुम अब इन आंसर्स को देखो, जब तुम आंसर बोल देते हो उसके बाद तुम, जैसे तुमने कोटा वाली बात बताई, सारी बताई, तुमको लेटर ऑन रियलाइज हो गया कि ये कैलकुलेटिव ट्रूथ में ये बताना था और ये ऐसे बताना था, ये तुम्हें इंटरव्यू में रियलाइज हो गया। अगर तुम इसे नोटबुक पे लिखना स्टार्ट कर दोगे तो बेटर आंसर्स बनेंगे ना। तो इसलिए तो क्वेश्चंस दिए थे, आंसर फ्रेम करो। आंसर फ्रेम नहीं करोगे तो गड़बड़ होनी है। मंजू तुमने कितनी बार लिखे अपना मैंने आंसर? तो 6 डायरी बना रखी है सर। 6 इसने, हर एक्टिविटी के साथ डायरी बनाती हूँ, मैंने आज भी बताया था, किससे बताया था, तुम लोग जब बैठे हुए थे। नंदिनी ने बनाई हुई है 3 से 4। अरे भाई मैंने भी खुद अपनी बनाई थी। आंसर अच्छे कैसे बनेंगे अगर तुम्हारा आंसर कल से अच्छा, तेरे को क्यों जीटीओ अच्छा आता है, दिमाग लगाता है ना तो उसके अंदर ब्लैंक, मतलब तू सोचता है ये करूंगा वो करूंगा, तेरा आंसर अच्छा कैसे बनेगा जब तुम उसे लिखोगे? अगर लिखोगे ही नहीं तो कहां से बनेगा? अगर ये कोटा वाली स्टोरी को लिखेगा नहीं तब तक उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे नहीं। ओके एनीवेज, तुम शीट्स लो, लिखो, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको काउंटर करना है अपने को। एनीवन क्वेश्चंस? हालांकि क्वेश्चन मेजरली हमने कल डिस्कस कर लिए थे, बट कुछ क्वेश्चन? सर मुझे अभी तक मैंने बहुत ज्यादा सोचा पर एसआरटी वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। कौन सा? 3 सीनियर्स हैं, एक यार उसके अंदर तो एक एमिएबल आंसर ही बनेगा, यू नीड टू। इसका क्वेश्चन ये था दैट इफ यू गेट 3, अगर तुमको 2 सीनियर्स मिल जाए, बोथ आर ऑफ द सेम रैंक्स एंड वन इज टेलिंग यू टू बी हैविंग अ स्माइलिंग डिस्पो, अरे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स को, ये पूछेंगे, ये लड़के से ये वाली एसआरटी पूछते हैं, हाँ, क्या आपको कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर मिलेंगे तो आप क्या करोगे? ये थोड़ा वो बोल रहे हैं मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा है। सोच, अगर राइट नाउ एट वन ऑफ टाइम संजय सर और मैं एंड वी बोथ टुक योर क्लास, आई गेव यू सम टास्क, ही गेव यू सम टास्क, बट तू दोनों एक दिन में नहीं कर सकती है, तो हाउ विल यू डील विद इट? नेचुरली सोच कैसे डील करेगी? सेम आंसर में जाना, डील करना ना तुझे। अगर तुझे लगता है तू दोनों काम कर सकती है पर दोनों कंफ्लिक्टिंग है तो कर भी नहीं पाएगी एक साथ। सो मुझसे पूछी हुई है ये सारी, बट मैं You- आंसर अभी नहीं दूंगी क्योंकि तेरा थॉट प्रोसेस नेचुरल नहीं आएगा। मैम मैंने बहुत सोचा, 3 बताए थे सर ने सीधे। हाँ। एक कह रहा है कि स्माइल करो, एक कह रहा है बिल्कुल मत करो, और एक कह रहा है तू नेचुरल रहे। हाँ एक ही रूम में 3 है ऐसा। हाँ हाँ, तो तू क्या तो मैं करेगी? पहले मैं स्माइल करूंगी, फिर ऐसे करूंगी, फिर ऐसे। No. Compare yourself the way you are, not how somebody will tell you to. They are senior, no disrespect to them. कोई disrespect नहीं, but तेरा जो body language है तू कब confident feel करेगी? When you be yourself. If you're not okay with smiling or if you're not okay with shutting your mouth, तो you will show your natural expression ना. ये चीजें किसी के कहने में थोड़ी चेंज करते हैं हम। उससे तेरे वो कुछ तुझे बोलेगा नहीं, मान ले नेचर ही है, he will not say anything to you यार। if you say कि sir I respect you but I think I'll be more confident the way I conduct myself right now, ऐसे बोल खत्म कर। मुझे तो इससे भी खतरनाक दिया था, ये तो बहुत सिंपलिस्टिक है। आपका वाला क्या था? मेरे को ऐसे बोल दिया था, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा स्टूडेंट ऑफ द मंथ होता था, हाँ जी। मैंने कल डिस्कस किया था।
मुझे ये बोला था कि तू एक ऑफिस प्रीमाइस में है और वहाँ के कैंटीन में जो लोग होते हैं ना, उनके लिए तेरे को कुछ आया है कि उनका कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो तू जाती है, एक सीनियर बोलता है कि नहीं उनका कंडक्ट अच्छा है, एक बोलता है नहीं अच्छा है, और तुझे फाइनल वो बनाना है, रिपोर्ट बनानी है उनके लिए, तो व्हाट यू विल डू? दो लोग मुझे कह रहे हैं कि इनका अच्छा है, इनका अच्छा नहीं है, बट फाइनल रिपोर्ट मेरे थ्रू जाएगी, तो मैं कैसे करूँ? What अब will you उनका do? कंडक्ट तो मैं अपने नेट पे देखूंगी ना। Exactly. तो we will go and research on your own कि actual situation क्या क्या है. है? अगर तुम किसी के कहने में कर रही हो तो biased decision making हो गई पर ना. हो सकता है ना दैट वन सीनियर जो है, हो सकता है ना दैट वन सीनियर जो है उसका कोई उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, जिस वजह से उसका रिलेशन के साथ बिगड़ रिलैक्स गया होके हो, बैठ जाओ, एंड द उतार ले अदर इसको, वन कम्स शीट्स ले ले तो बाहर से. ये पूछेंगे गर्ल्स से, तो ये एसआरटी आएंगी नहीं आएंगी भाई, बिल्कुल आएंगी, बिकॉज दे फील प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा लूज है, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं वी कैन बी प्रैक्टिकल। और सुनीता, सुनीता राइट? हाँ, क्या क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? सर जैसे ना ये फील्ड अटेम्प्ट्स वाला था, हाँ, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके इतने रेपिटेटिव फील्ड अटेम्प्ट्स क्यों हैं, तो उसको किस तरीके से आंसर करना यार चाहिए? आपके repetitive field attempts, see there is not a standard answer to these questions. For example, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में निकलता है, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट में निकलता है. फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट व्हाई देयर वर फेलियर्स. लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर मेरे को जो पढ़ाई करने का कम टाइम मिला, मुझे 2 महीने मिले, मुझे 3 महीने मिले. You need to accept for sir the standard time to clear an exam is 6 to 8 months. In these 3 attempts, I was not focused to clear the examination. ये मेरी problems थी. In the coming 1.5 years, I was able to identify them and clear the examination. Very simple. If you start accepting your failures and mistakes, it's very easy to clear the interview. But if you're not, then it creates a problem. कि 2 साल हो गए आपका एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, बट यू से दैट सर 1.5 साल के अंदर ये मेरी प्रॉब्लम्स थी, इस पर मैंने काउंटर करा. आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर पर से. अगर मैथ्स में तुम अच्छे नहीं थे, किसी में भी नहीं थे, तुम एक्सेप्ट करोगे ना मिस्टेक. सी द फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द आर्मी. नॉट एक्सेप्टिंग द फेलियर, यू एक्सेप्ट द फेलियर, यू एक्सेप्ट द लर्निंग एंड यू इम्प्लीमेंट द लर्निंग. दैट्स इट, दैट इज ओके. अगर उनको टॉपर्स ही चाहिए होते तो फिर तो वो आईआईटी खड़गपुर से और बिट्स पिलानी से उठा लेते, ठीक है, टॉप ग्रेजुएट सेंट स्टीफन से उठा लेते, खत्म हो गई होती. बट तब तुम देखो, अगर तुम पीआईक्यू का पेज देखो, पीआईक्यू के सेकंड पेज के ऊपर मैक्सिमम चीजें वो हैं जो तुम कंट्रोल करते हो. पीआईक्यू के फर्स्ट पेज के ऊपर आप एक्सेप्ट एकेडमिक्स, बाकी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. तुम कहाँ पैदा हो रही हो या तुम कहाँ रहे, मैक्सिमम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है. पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा तुम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो. कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लाइक इफ समबडी लूजेस ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स. बट एकेडमिक्स वाले ब्लॉक को छोड़ के, बट अगर तुम पीआईक्यू के दूसरे पेज पे आ जाओ, हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुमने एनसीसी करी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, एग्जाम, ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है. तभी तो सेकंड पेज की देखो कितनी इंपॉर्टेंस है. किसी भी इंटरव्यू में तुम जाओगे, गूगल वगैरह कोई नहीं पूछने वाला आपने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर करा है, बिकॉज दे आर नॉट ओनली लुकिंग लीडरशिप क्वालिटीज सिर्फ एकेडमिक्स से आती है. लीडरशिप क्वालिटीज बहुत सारी जगहों से आती थी, विच ही वाज नॉट एबल टू गिव गुड आंसर्स. फ्रेमिंग नहीं करी गई है. एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सक्सेस. देखो फेलियर क्या बताता है, तुम्हारे 10 में से 4 मार्क्स है, पासिंग मार्क्स अगर 8 है तो 4 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो फेलियर है. फेलियर इज जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द राइट डिस्टेंस to become successful. This is not said by me. This was said by Chanakya to Chandragupta Maurya. That's it. Acceptance. क्या तुम कल से लॉस्ट लग रही हो, क्या हुआ? I think you have a feeling that there is much to learn. बहुत कुछ सीखना है. कल से वो अवेकनिंग है क्या श्रद्धा का इंटरव्यू देखकर? हाँ? कोई एनी क्वेश्चन? देहरादून? हाँ बताओ. सर मैं डीएवीसी ग्रेजुएशन किया मैंने. तो सर आप देहरादून में रहे हैं, तो उसमें ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिकली पॉलिटिक्स है, पर इसको मैं ब्लेमिंग बोलूँगा वैसे. आई बिकेम कैजुअल टुवर्ड्स माई स्टडीज बिकॉज ऑफ डिफेंस, प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस. आई गॉट लो परसेंटेज. आई हैव 2 बैकलॉग्स इन माई लास्ट सेमेस्टर करंटली एंड आई नीड टू क्लियर इट बाय अप्रैल. तो सर इसको एक्सेप्ट तो मैं कर लूंगा, पर सर इस पे क्रॉस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और इस पे इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं? यार रेपरकशंस पे के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अगर तुम रेपरकशंस ज्यादा सोचोगे ना तो फिर ये होगा. ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन के अंदर जैसे तुमने बोला सर मेरे बैकलॉग्स थे, एंड यू सेड सर आई हैड 2 बैकलॉग्स, आई क्लियर. जैसे तुम ये लाइन बोलते हो ना कि मेरे बैकलॉग्स थे और मैंने बैकलॉग्स क्लियर करा, तेरे ऊपर से ना वो झूठ का गिल्ट हट जाता है कि अब तो सच बोल चुका हूँ कि बैकलॉग्स थे,
बैकलॉग्स क्यों आए, बैकलॉग्स आने से मैंने क्या सीखा, सर ये तो लाइफ में ये वंस यू से सर दिस इज माय करंट फेलियर बट आई विल मेक श्योर दिस फेलियर डज नॉट रिपीट इन लाइफ, और उसके लिए मैं ये स्टेप्स कर रहा हूँ। यस सर। अब अगर तेरे पास इसका कुछ एग्जांपल आ जाता है कि ये फेलियर फ्यूचर में नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल यू क्लियर सीडीएस, ठीक है, तो वो तेरे लिए एक एडिंग पॉइंट हो जाएगा। ये सर ग्रेजुएशन में तो अच्छा नहीं, बट मैंने एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम तो निकाल लिया है, तो वो एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। तो अगर आप रिटन एग्जाम्स क्लियर करते हो ना, वो एक थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है टू एटलीस्ट शो योरसेल्फ। मधुरम एनी क्वेश्चंस? दिमाग में चल रही है अभी चीजें? हाँ सर, वही फंसा हूँ जहाँ मुझे पता था फंसने वाला हूँ। हाँ। वही है। ठीक है, तुम शीट ले लो और तुम अलग से बैठकर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बिकॉज अभी जितने माइंड में क्वेश्चंस हैं वो 1-2 दिन बाद कम हो जाएंगे, जैसे श्रद्धा ने भी कल लिखा। हाँ सर, how much of knowledge of army is required in? हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। हाउ मच ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स? सुखोई के अंदर कौन से इंजीनियरिंग पार्ट लगे हुए हैं कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, बट इतना जरूर पता होना चाहिए कि सुखोई फाइटर प्लेन है। आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू, आई आस्क्ड, मैंने कहा दीस, तो इट वाज आई थिंक कौन सा बैच मुझे याद नहीं है, तो मैंने बोला देखो सुखोई है, ये क्या है, वो तो सर दीज आर टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। ये नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा ही नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रफाल हाशिमारा में लगा हुआ है, रफाल क्यों खरीदा गया, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, क्योंकि रफाल के अंदर बीवीआर है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है 150 से 200 किलोमीटर की। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है अगली 150 किलोमीटर तक मुझे जाना ही नहीं है, मैं मिसाइल मार सकता हूँ। तो यानी कि मैं चाइनीज बॉर्डर से 150 किलोमीटर पीछे रह सकता हूँ, मेरा पायलट सेफ है, राइट? क्या पायलट की आंखें 150 किलोमीटर देख सकती हैं? नहीं देख सकती, राइट? तो ये उसकी एक बहुत बड़ी चीज है। तो जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें एक्सेप्शनली पता हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इंडियन आर्मी के अंदर जैसे फिलहाल न्यूज में चल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आने वाली है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, इंडियन आर्मी का फर्स्ट सीडीएस कौन है, इंडियन आर्मी का पहला चीफ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे तुम इंडियन एयरफोर्स के लिए एसएसबी के लिए जा रहे हो, तो जब तुम एसएसबी में इंटरव्यू से पहले ना बाहर फाइटर प्लेन्स की नॉलेज होती है, कुछ मूर्ख तब रटते हैं। क्या इंटरव्यू से पहले तुम रट लोगे उसको? जरूरी है वो वही पूछेगा? कुछ लगता है कि सर 4 न्यूज़पेपर थे तो रटेंगे, नहीं भाई, जितना आपको करना है वो यहीं पे कर लेना जाने से पहले। फाइटर्स के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, एएफएसबी में जा रहा हो, प्लेन कैसे उड़ता है, जैसे एविएशन कोर ज्वाइन करनी है, जैसे हेलीकॉप्टर का बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है, हेलीकॉप्टर में क्या है, तुम गूगल में डालो बर्नौली का थ्योरम खुलकर आ जाएगा, फाइटर प्लेन कैसे उड़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन। फौज के इंटरव्यू के अंदर वो बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं, प्लेन कैसे उड़ता है, बहुत बेसिक है ना। क्या ये पूछ रहे हैं कि रैमजेट इंजन का डिस्क्रिप्शन दो? नहीं। इट्स गुड दैट यू वांट टू लर्न बेसिक मिसाइल्स के बारे में पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, बेसिक कह रहा हूं। इंडियन आर्मी कब एस्टैब्लिश हुई, इंडियन आर्मी का क्या एम है, कारगिल की जंग कब स्टार्ट हुई, 3-4 कारगिल के वॉर हीरोज से पूछ लिया तुमने, तो पूछ लिया, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा की, कैप्टन विक्रम बत्रा ने कौन सी पीक ऑक्यूपाई करी थी, बहुत मूवी बन रही है उनके ऊपर। अब कैप्टन विक्रम बत्रा के सिवा ज्यादातर लोगों को कैप्टन मनोज पांडे की स्टोरी नहीं पता। एटलीस्ट तुम्हें परमवीर चक्रों के बारे में तो पता हो, रीसेंट तो बताओ 2-3 परमवीर चक्र के बारे में। तो बहुत, ये मैं बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, सुपरफिशियली, इतना तो कर ही लो। एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो फाइटर प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए। हु इज द हाईएस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? अर्जुन सिंह सर। हाँ, तो इस तरीके की नॉलेज को, ये तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बट ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही पुअर हो। ग्रेजुएट एंट्री से थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करा जाता है, क्योंकि आप ज्यादा मेच्योरिटी है, ज्यादा पढ़ाई, तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में, रैंक्स के बारे में देखो, इनमें कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर गड़बड़ हो जाए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये मुझे ये नहीं बता पा रहा था, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ योर मदर फादर, वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर सिस्टर, वो ब्लैंक हो गया था इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करे थे इसने, क्योंकि ये सोच के नहीं आया था कि मैं पूछ लूंगा कि आप बहनों के साथ टाइम स्पेंड, ही वेंट ब्लैंक, ही डिडंट हैव एन आंसर बिकॉज रैंक रट्टे मार रखे हैं। बहनों के साथ क्या बॉन्ड है वो थोड़ी है। बोल रहा है वो उत्तराखंड का है, बताता होगा उसे, प्रॉबेबली बताया होगा, बट देयर आर बेटर एग्जांपल्स ना। अभी जाकर सोचेगा तो देयर मस्ट हैव बीन बेटर एग्जांपल्स ऑफ बॉन्डिंग विद योर सिस्टर्स, राइट? तो वही है, इसको और ग्लेल कर सकता था। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पूछता सम गुड, अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे 2-3 इंसिडेंट्स बताता, हम यहाँ घूमने गए, हम ऐसे टाइम स्पेंड करते थे, तो और कॉन्ट्रडिक्शन होता, क्योंकि गर्लफ्रेंड के लिए बता पा रहा है बट बहनों के लिए नहीं बना पा रहा है, फिर और फंस जाता। बट वहां तक करने की जरूरत थी नहीं, मदन हमने खाई खोद ही रखी थी अपने पहले ही, ठीक है, उतने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, वो जवाब ही नहीं दे रहा था। ठीक है, चलो, लवली टॉकिंग टू यू। हाँ तो उन्होंने कहा एयरफोर्स क्यों नहीं करना? हाँ
तो मैंने कहा सर जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ से मेरे को मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडियन आर्मी में है, तो मैंने वही इन्वायरमेंट देखा है, तो ये कोई आंसर थोड़ी हुआ। मैंने कहा वही मेरे को इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड। क्या जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ वहां पर तो सारे आईएएस रहते हैं। तो आईएएस बनता अगर मैं भी नहीं सर। दिस नॉट एन आंसर, पुअर आंसर सर। सर इसका क्या पूरा पुअर आंसर। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर तुम जहाँ पर रहते हो वहां पर 100 लोगों में से तुम जहाँ पर रहते हो वहां पर जो फैमिलीज हैं वहां पर 10,000 लोग हैं जिसमें से 90% पॉपुलेशन चोर है। चोर बनोगे? नहीं सर वो हम इम्बाइब ही नहीं, चोर बनोगे? सर वो पॉजिटिव चीज नहीं है ना सर, हाँ पॉजिटिव नहीं है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव फील नहीं है। तो तुम्हें कौन सी फील आती है वहां पर देखने से? आर्मी से पॉजिटिव फील आती है। सर वो अगर कोई चीज अच्छी होगी और मेरे को अच्छा लगेगा तो ही तो मैं क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? यही तो जवाब है। श्रद्धा, यू रिमेम्बर यू वर टेलिंग मी द सेम आंसर, यू डोंट हैव एन आंसर। तो बोल रहे पब्लिक, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है जहाँ पे सब लोग गड्ढा खोदते हैं, तो सर मुझे भी गड्ढा खोदना है। क्यों? गड्ढा खोदने में मजा आता है, फावड़ा उठाने में मजा आता है। क्यों क्यों पूछ रहे हैं वो? तू बोल रहा है सर यहाँ पर ये करते तो मैं भी कर लूंगा। आंसर नहीं है अभी भी तुम्हारे पास। मैंने पहले भी बोला तेरी पुअर आंसर फ्रेमिंग है। फॉर एग्जाम्पल तू इंडियन एयरफोर्स के एसएसबी के लिए गया, तब तो तू जवाब ही नहीं दे पाएगा। अगर एफएसबी के लिए क्या फिर क्या जवाब देगा? सर आई डोंट वांट टू जॉइन द एयरफोर्स, मैं तो बस इसलिए आ गया था क्योंकि एसएसबी क्लियर हो गया। अब बताओ क्या जवाब दोगे? इंडियन नेवी के एसएसबी के लिए गया अब तो, वो तो आंसर भी नहीं है। आर्मी की जगह नेवी का पॉपुलेशन। हाँ बस खत्म। फॉर एग्जाम्पल तूने ये बोल दिया कि सर मैं इंडियन नेवी की, वो फिर इंडियन नेवी के इतने क्वेश्चन फोड़ेंगे ना तेरे सर के ऊपर, तेरा बैंड बच जाएगा। एंड दिल गेट टू नो, जैसे मैंने प्रूव कर दिया था ना दैट, जैसे श्रद्धा के साथ इंटरव्यू था जिसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं था सीएपी, इसको तो यही नहीं पता कितने मार्क्स के पेपर है। पेपर 1 के 100 क्वेश्चन बता रहा था ये, 125 क्वेश्चन आते हैं सीएपी पेपर 1 में, तो ये बैकअप ऑप्शंस हैं आपके। सो दैट्स व्हाट, जब आप बोलते हो ना इंडियन नेवी मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, जब तुम बोलते हो आर्मी मेरा फर्स्ट ऑप्शन, भैया तुम्हें मतलब पूरा पता होना चाहिए उसके बारे में। जब तुम बोलोगे नेवी फर्स्ट ऑप्शन, वो फट से बोलेगा ओके टेल मी कि इसके केरला के बेसिस और लक्षद्वीप के बेस पे क्या चल रहा है। अगर तुम नेवी में इंटरेस्टेड हो तो मैं पता होगा। वही है, जहां पर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वहां से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इंटरेस्ट है कि नहीं। यू डोंट बिकम, तुम्हारी फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस को डिमीन करके नहीं बन सकती है। Like one of the candidates, he went to the Air Force SB. He was asked, "What's your first choice?" He said, "Sir, my first choice is the Indian Army." They respected. They got recommended. हाँ, that's not a problem. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सर फर्स्ट चॉइस इन द आर्मी, एंड सर देन वो पूछेंगे फिर यहाँ क्यों है? बिकॉज एज अ करियर ऑप्शन यू कैन। और आप काफी सारे लोगों का होता है सर द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म डज नॉट मैच, आई वांट टू सर्व द नेशन। ये स्नेहा गायकवाड़ का आंसर था। उसके पास 1-2 एसएसबीज और भी थे इफ आई एम करेक्ट। तो बोलते सर द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म डज नॉट मैटर टू मी, आई वांट टू जॉइन द सर्विसेज, व्हिचएवर हैपेंस आई विल जॉइन इट। बट इसके अंदर फिर बाकी सर्विसेज की काउंटर क्वेश्चंस प्रिपेयर होने चाहिए, जैसे इसके साथ होंगे कि आर्मी वाज माय फर्स्ट ऑप्शन। वो बहुत अच्छी चीज है, आप जिसके लिए जा रहे हो वही आपका फर्स्ट ऑप्शन हो। बट इट कैन नॉट बी सर की, लाइक फॉर एग्जांपल दे आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी, माय फादर वाज इन द नेवी। पूछा why are you not joining navy, why are you not joining air force, why are you not joining navy, why are you joining army? अब मेरे पास आर्मी की इतनी चीजें थी, so these are the reasons of joining the army. What these are the things sir which army is doing, the scope of learning in the army is too high, but why are you not joining navy? अब navy ना join करने का, sir navy is a wonderful force, but I find Mike more capable in the army because of a x y z reasons. Indian navy is a superb force, my father has worked in it. मैं Indian navy को demean नहीं कर सकता क्योंकि जिस बाप ने उसमें नौकरी करी उसकी वजह से मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो इंडियन नेवी को तो अच्छा रखना ही है, उस बैकग्राउंड की वजह से तो मिलिट्री बैकग्राउंड बना मेरा, वहीं से तो आया है कोर सेट। आई एम जस्ट सेइंग सर व्हाट आई लर्न फ्रॉम नेवी प्रॉब्ली आई कैन अप्लाई मोर इन द आर्मी। आपको ना जैसे मैं बताता हूँ सेकंड थर्ड ईयर के अंदर जब मैं ना फौज को जीता था, इट वॉज ईटिंग स्लीपिंग ड्रिंकिंग टॉकिंग अबाउट द फौज। आप जब तक उस फेज में नहीं आएंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी।
आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा. सेकेंड ईयर आई वाज डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एवरीथिंग. तो व्हेन आई वेंट टू द ग्रुप डिस्कशन, मुझे तो जोक लग रहा था एसएसबी का जीडी. वो जो बच्चे सामने बोल रहे थे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीडी कर रहा था. दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी यूज्ड टू गो, लाइक आई विल टेक एग्जांपल ऑफ गार्गी और कमला नेहरू का. वहां पर बैठती हैं 1000 लड़कियां सामने, 1000 लड़कियों के सामने बोलने में और 10 लड़कों के साथ जीडी करने में कोई जोक लगता था मुझे वो जीडी करना. बिकॉज बाय थर्ड ईयर माई नॉलेज आई वाज सेकंड और थर्ड बेस्ट स्पीकर इन डीयू यार बाय दैट टाइम. तो एक्सपोजर इतना ज्यादा था. जैसे पूछोगे दयाल सिंह कॉलेज में, यू गो टू गार्गी एंड एलएसआर, ऐसा लगेगा कॉलेज खा जाएगा आपको. करेक्ट. हाँ, डिबेटिंग सोसाइटी. हाँ भैया, आज के जो डीयू से हिंदू का होता है फेस्ट, तंत्रा ऐसे ही कुछ नाम है भैया. व्हेन यू गो, जब दिखती है ना 1500 की भीड़ और वहां पर आपको बोलना है जाकर, तो पैर कांपते हैं आपके. 1500 वर्सेस 8 बच्चे, तो फिर आपका ना एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक्सपोजर कर रहे हो. अब मधुरम का और श्रद्धा का इन सबका इंटरव्यू बेटर ही जाना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ गई है ना, पता लग गया ना इन चीजों पे काम करना है. यू आर सीरियस राइट नाउ, यू वांट टू वर्क. दैट इज व्हाट हैपेंस. पिक्चर आ जाती है और बाय द टाइम यू गो देयर, एक तो एसएसबी देगा, पता लग जाएगा भैया खत्म कर देंगे अब तो इसको, कमियां पता लग जाएंगी. क्लियर एवरीवन? ठीक है, थोड़ा सीरियस होगा. आ जाओ फोटो खिंचा लो, चलो.